equals to 2 will give you false because 1 and 2 are different values, they are not equal. Alright, so that is for boolean. अभी इसमें आप ये भी देख सकते हो कि true equals to false. ये भी आपको false मिलेगा क्योंकि 2 are very different values. But false equals to true आपको true देगा because false same होता है. So basically it's like a binary data type जिसमें आप true false बोल सकते हो, on off बोल सकते हो, 1 0 या 1 बोल सकते हो. But only these two values can be accepted as bool. Otherwise वो नहीं accept करेगा कोई भी और value. 2 3 आप डालोगे वो नहीं accept करेगा. So every boolean या bool variable accepts only two kinds of values, that is 0 and 1 or true and false. वो होता है कोई भी condition validate करने के लिए कि वो true है कि नहीं. So if that is clear, we can move on to the next thing, which is okay, so we're done with data structures and basic primary data structures. So फराज कुछ सवाल है तो पूछ सकता है. No, not yet. अभी हाँ तो ये जो बोल रहा है वो idle पे implement किया है मैंने. हाँ And it's quite straightforward. तो ये सब हम पहले भी कर चुके हैं, but as this is our first video, so I kind of, as you suggested, I kind of revised the whole thing. तो अभी हम लोग next इस पे जाते हैं, which is strings हमने पढ़ी थी, I don't remember. Strings का basic वही है जो मैंने अभी just आपको बताया, लेकिन ये notebook अलग है. So strings में creating strings, printing strings, string indexing and slicing किया हुआ है, but फिर भी I'll revise it a little bit. So print करना किसी भी चीज को, you have to use the print command. जैसे Java में system.out.println होता है, वैसे Python में print होता है, सिर्फ print. And it's very convenient because एक शब्द है, unlike what Java has. So आपको ये अगर print करना है console के अंदर, ये कहीं भी print नहीं होता, ये console के अंदर होता है. In case of idle में ये console है. अगर आपको अलग से कोड बना के या अलग फाइल बनानी है Python की, तो आपको idle में जाके Control N दबाना पड़ेगा. So this is now your Python file, which will be saved as whatever file name .py. तो इसके अंदर आपको अगर प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट हेलो लिखना पड़ेगा, और ये फाइल जब आप रन करते हो, इसको पहले सेव करने का आपको प्रॉम्प्ट देता है, hello.py आप नाम रख सकते हो. So if you once you save it, it runs in the console, which is called the Python shell or the idle shell. So you can make n number of files and save it in your documents folder or whatever folder you want to save it in. ये आप Python फाइल्स बनाकर उसको जब करोगे वो इस कंसोल में रन होगा. जैसे मैंने अब प्रिंट हेलो वहाँ फाइल में डाला था, वो अब यहाँ खुला, यहाँ रन होके हेलो प्रिंट करके आया. So it's that basically if you want to print anything in the console, you have to just write print round brackets and in मतलब quotes डाल के hello. So जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट नोटबुक के टाइम बोला था कि you can write strings using double quotes, single quotes or even triple quotes. But अभी इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? quotes जब हम लोग यूज करते हैं, the basic problem is if I use quotes to create a string और मुझे सेंटेंस या जो वर्ड है उसके अंदर apostrophe लगानी है, या कोट्स के अंदर आपको पता है जो लोग ऐसे बात करते हैं, कोट्स अगर कोट्स के अंदर डालने हैं, या किसी बड़े ऑथर ने लिखा हुआ कोट मुझे स्ट्रिंग के अंदर एज अ कोट डालना है, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज फिर if I put quotes, double quotes or single quotes inside the quotes itself, the compiler misunderstands it as opening and closing of the string. So ये opening quote है और ये closing quote है. But if I put quotes over here, sorry, if I put quotes over here, you can see how the highlighting has changed. So now what Python is doing is it's considering this as one string, this as something. It doesn't know what, because we have opened a string here, closed it right here. So it doesn't consider this as an apostrophe, it considers it as closing of a string. Same thing then यहाँ पे मैंने खोला है और यहाँ पे बंद किया है string को.
these will be just ignored नहीं बोल सकते, this will raise an error, जो invalid syntax का error है वो मिलेगा आपको. So to face this problem, Python has this thing called escape characters. Escape characters are basically non-printed characters. Escape characters are never printed. Escape characters are always just there for functional reasons. जैसे अगर मुझे ये अपॉस्ट्रोफी, ये एक स्ट्रिंग है, मुझे इसके अंदर अपॉस्ट्रोफी भी डालनी है और ये दोनों कोट्स भी डालने हैं विदाउट मेकिंग एनी सिंटैक्स एरर, सो आई जस्ट हैव टू, अपॉस्ट्रोफी का जो कोट है उसके पहले मुझे एक बैकस्लैश डालना है, दैट्स इट. इवन बिफोर दीज कोट्स आई हैव टू पुट बैकस्लैशेस. So now this entire thing is considered as a string, and when I try to display it, I get the apostrophe in my string, I get these quotes, whatever I wanted. So I get my string as it is without any errors. So backslash is the key for all escape sequences. आपको अगर न्यू लाइन कैरेक्टर डालना है, मगर मतलब अगर आपको इस इतने पार्ट को एक लाइन पे प्रिंट करना है और इतने पार्ट को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है, you have to put a backslash and n. N stands for new line character. So now if I you can't just enter, ये इसको console में आप enter करोगे तो वो नहीं बताएगा. So what you have to do is basically cut this, write print and paste the string inside the parameters and you'll understand. जब मैंने string को print किया, ये न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस जहाँ पे मैंने डाला है वो प्रिंट नहीं हुआ, बट उसने अपना काम कर दिया, विच वॉज बेसिकली प्रिंटिंग द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग ऑन अ न्यू लाइन, जो यहाँ पे हुआ है अभी. बट कोट्स के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर, सो इट काइंड ऑफ शिफ्ट्स द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग टू अ न्यू लाइन. सो दैट इज व्हाट एस्केप सीक्वेंसेस डज. सो उसमें आप टी डालोगे तो 4 स्पेसेस आ जाएंगे, तो एंड आपको अगर बैकस्लैश ही स्ट्रिंग के अंदर डालना है, सो ऑल यू हैव टू डू इज पुट 2 बैकस्लैशेस, व्हिच इज, सो बैकस्लैश ही की है. बैकस्लैश, एक बैकस्लैश डालोगे तो कुछ नहीं होगा, एक बैकस्लैश डालोगे तो एक बैकस्लैश ही आएगा, बट एक बैकस्लैश के बाद आपने अगर डॉट डाला तो वैसे ही प्रिंट होगा. So you can't just put anything. There are some like very strict rules as to how to use escape sequences. So escape characters in Python अगर हम देखेंगे, w3schools.com, very good website. So इसमें आता है सिंगल कोट के लिए बैकस्लैश सिंगल कोट, बैकस्लैश के लिए बैकस्लैश 2 बार, न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n, कैरेज रिटर्न के लिए बैकस्लैश r, टैब के लिए बैकस्लैश t, बैकस्पेस के लिए, बैकस्पेस इज बेसिकली, अगर हम यहाँ पे देखें बैकस्पेस के लिए मतलब इफ आई पुट, यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया बैकस्पेस कैरेक्टर, तो बैकस्पेस दबाने में क्या होता है, एक कैरेक्टर डिलीट हो जाता है. सो इट विल डू द सेम थिंग विच इज BUT में से BU को हटा देगा. सो इफ आई एग्जीक्यूट, यू कैन सी हियर कि वो कैरेक्टर प्रिंट नहीं हुआ है, बट द BU इज गॉन. BU में से BUT में से BUU चला गया है. सो एक बार बैकस्लैश हो जाता है. तो वैसे ही मैंने अगर 2 बार बैकस्लैश डाल दिया तो BUT में से B और U दोनों चला गया है, because I have put 2 backslashes. It's just basically like the compiler is pressing backslash for you. The number of times you put backslash B, sorry. It's pressing backspace, sorry, not backslash, backspace for you as many times as you put backslash B in a string. Okay, so escape sequences, you can go to this w3schools.com website and type Python escape characters. अब Google करोगे तो भी first page पे आ जाएगा. So you can copy this down or you can just, I don't know, memorize it if you have a good memory, or refer to it once in a while. अगर आप भूल जाते हो उसमें कोई problem नहीं है, आप refer कर सकते हो. So these are print statements along with जहाँ पे आप देख सकते हो बैकस्लैश n डाला हुआ है, न्यू लाइन कैरेक्टर डाला हुआ है, वहाँ पे the cursor which is what we call the compiler, जैसे प्रोग्राम पढ़ता है, जैसे ये cursor है वैसे कंपाइलर का भी एक cursor होता है, या उसको कंट्रोल भी बोलते हैं कुछ लोग. सो जैसे जैसे जहाँ न्यू लाइन कैरेक्टर बैकस्लैश n डाला हुआ है वहाँ पे it shifts to a new line.
ओके सो स्ट्रिंग बेसिक्स मतलब कुछ नहीं, स्ट्रिंग्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एल ई एन इज अ फंक्शन जो आपको स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है वो बताता है। सो स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स का चक्कर ये है कि स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में जो होता है देर आर सेवरल, लेट्स से several characters. Now, characters means not the characters like in a movie, but characters as in single letters are called characters. So, if you chain these such characters together, you get a string. Okay, so this is what basically a string is. जैसे फिर से आप रेलगाड़ी का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर एक पर्ल्स का नेकलेस है, मोतियों की एक माला है, जिसको आपको if every single moti, yeah, pearl is a character, then if you string them together, it becomes a string or a word. जैसे हम लेटर्स और वर्ड्स बोलते हैं, जैसे वैसे ही पाइथन में लेटर्स को कैरेक्टर्स बोलते हैं और वर्ड्स को स्ट्रिंग्स बोलते हैं। वर्ड, सेंटेंसेस, फिर पैराग्राफ्स, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इसी एनालॉजी के साथ अब आप अगर समझोगे, जैसे एरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है, वैसे स्ट्रिंग्स के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है, जो 1 2 3 से चालू होती है, 0 1 2 3 से चालू होती है, और फिर वो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग के अंदर उतने indexes बन जाते हैं। But the last one, like the last index or the last character will end with the number of characters -1 because it starts from 0. So length function क्या करता है? Length function basically आपको कितने characters है string के अंदर वो count करके देता है। So अगर मैंने a डाला quotes डाल के, तो length is equal to 1, but the index will be 0. ठीक है? So that's the basics of length. Length is just a function जो एक ब्रैकेट में string लेता है, कोई भी string लेता है। अगर मैंने एप्पल डाल दिया यहाँ पे string quotes के अंदर, तो it will give me 5 जो इसका लेंथ है, जो and this 5 is an integer. 5 का टाइप होता है integer। तो अगर मैंने समझो यहाँ पे टाइप कर दिया टाइप लेंथ एप्पल, सो वो मुझे मिलेगा int because length is a number. लेंथ किसी चीज स्ट्रिंग की लेंथ मतलब लिटरली इट्स लाइक स्टेटिंग यू हाउ लॉन्ग द स्ट्रिंग इज, हाउ मेनी कैरेक्टर्स इट हैज। सो वो एक नंबर है एंड इट टेक्स इन अ पैरामीटर व्हिच इज अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट थिंग, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। बेसिकली एरेज का जो इंडेक्सिंग होता है इट्स द सेम थिंग, इट्स नथिंग डिफरेंट। सिर्फ इसमें इस केस में हमारे पास वो बॉक्स ब्रैकेट नहीं है और कॉमास नहीं है। बाकी इंडेक्सिंग सेम तरीके से होती है जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था डायग्राम में, which is basically starts from 0 1 2 3 4 and goes on till the string, the end of the string. So that's the basic of string indexing. तो आप same box bracket use करके s equals to s of 0 अगर डालोगे, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको h मिलेगा, which is in this case the first element which starts the starting index is 0। अगर मैंने 5 डाला तो you won't get anything। अब आप सोचोगे क्या हो गया? so strings के अंदर ये जो space है यहाँ पे, ये basically इसको space character बोलते हैं, या space bar दबाने पे जो कैरेक्टर आता है white space, इसको white space बोलते हैं because it's nothing, it's just a blank space। so इसको भी एक कैरेक्टर मानते हैं। so अभी if you start counting 0 1 2 3 4 and 5, तो फिफ्थ इंडेक्स पे एक white space है, तो ये आपको स्ट्रिंग के अंदर एक white space ही देगा। ओके सो स्ट्रिंग्स को भी आप वैसे ही प्रिंट कर सकते हो। अब ये बेसिकली ये क्या फंडा है मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रिंग्स को आप जैसे इंडेक्स कर सकते हो वैसे स्लाइस भी कर सकते हो। सो स्लाइसिंग इज बेसिकली जो उसका लिटरल मीनिंग है, विच इज जैसे आप फ्रूट्स को स्लाइस करते हो। अंगूर का अगर आपके पास एक गुच्छा आता है, अगर आपको उसको स्लाइस करना है तो आप उसके अलग अलग एक एक अंगूर निकाल सकते हो। सो बेसिकली इफ यू वांट टू
ये स्ट्रिंग है आपके पास, इसको इरेज कर देता हूँ। आपके पास अगर ये वर्ड है, ठीक है, तो स्लाइसिंग इज बेसिकली, क्या हो गया यार, हाँ, स्लाइसिंग इज बेसिकली यू कैन टेक स्लाइसेस ऑफ दिस स्ट्रिंग सेपरेटली एंड हैव सेपरेट स्ट्रिंग्स। सो स्लाइसिंग बस यही होता है। तो आप स्लाइस करने के लिए आप कैसे भी स्लाइस कर सकते हो। यू कैन टेक दीज थ्री एलिमेंट्स, यू कैन टेक these four elements, you can take the last two, you can take the first two, anyhow, anywhere. So the way to do this is, if you have a string, ये s equals to, अगर आपने hello लिख दिया तो hello होता है, one second, हाँ, so अगर आपने s equals to hello लिख दिया तो s स्क्वायर ब्रैकेट जो हम यूज करते हैं इंडेक्सिंग के लिए, एंड यू हैव टू स्टेट टू इंडेक्सेस, द स्टार्टिंग इंडेक्स जहां से आपको फर्स्ट लेटर जो उठाना है आपको, और लास्ट लेटर के एक बाद वाला, मतलब ये अगर आपको एल तक चाहिए तो आपको ओ का इंडेक्स डालना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स लाइक अ अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग काइंड ऑफ थिंग, जैसे हम लोग बाउंड्स सीखते हैं सीक्वेंसेस में, तो यू नीड अ स्टार्टिंग इंडेक्स, यू नीड टू राइट अ कोलन एंड यू राइट द एंडिंग, मतलब लास्ट इंडेक्स, या एल लिख देता हूँ फॉर लास्ट इंडेक्स प्लस वन जो वैल्यू है वो। तो अगर आपको इस इंडेक्स तक ये पूरा स्लाइस चाहिए तो आपको इस इंडेक्स के जो बाद वाला इंडेक्स है आपको उसका नंबर डालना है, सो दैट बिकॉज दिस इज नॉट इंक्लूडेड अगर आप इसको डालोगे। सो इफ आई हेलो वर्ल्ड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और इसमें मुझे अगर एल एल ओ चाहिए, बस सिर्फ एल एल ओ चाहिए, तो एल एल ओ, एच इज द जीरोथ इंडेक्स, ई इज द फर्स्ट इंडेक्स एंड एल इज द सेकेंड इंडेक्स, सो सेकेंड कोलन, और ओ में डाल सकता हूँ, ओ इज द फोर्थ इंडेक्स, बट अगर मैंने फोर डाला तो मुझे सिर्फ एल एल मिलेगा, सो इसीलिए आई हैव टू पुट एल प्लस वन विच इज फाइव, लास्ट इंडेक्स प्लस द वन plus 1, so I have to put 5 and I'll get LLO। तो वैसे आप कितने भी indices ले सकते हो। Okay, so you can slice it, dice it anyhow you want। अगर आपको first 5 letters चाहिए तो आप इसको 0 डाल सकते हो या फिर कुछ नहीं डाल सकते। It considers this blank start variable as 0, so if I execute that I'll get hello, which is the first 5 elements। And the same goes for, let's say if you want the last जितने भी है last 5 elements आपको चाहिए, so आप जहां से एक दो तीन चार पांच, okay, so this is the fifth index, if I put 6 over here, 6 से लेके लास्ट तक जितने भी हैं तो आपको वर्ल्ड मिल जाएगा, because this is the fifth index, world w is the sixth index, so w से लेके end तक। This happens in cases when you don't know how long your string is, या फिर उसकी एंड कहाँ पे है या क्या है आपको पता नहीं, आपको बीच का कोई एक इंडेक्स मिल गया है, सो यू कैन यूज दिस टेक्निक टू रिट्रीव द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स। सो दिस इज बेसिकली स्लाइसिंग। अब इसमें और एक फीचर है विच इज कॉल्ड स्टेप्स। सो स्टेप्स मतलब क्या, अभी स्टेप्स मतलब बेसिकली जो सीढ़ियाँ जैसे आप चढ़ते हो, तो कभी कभी आप सीढ़ी वन एट अ टाइम चढ़ते हो, या कभी कभी जब आप बच्चे थे, या इवन नाउ अगर आप जल्दी में हो, तो when you climb stairs, sometimes you climb one at a time, one step at a time, or sometimes you climb two steps at a time if you're in a hurry. So if you consider these steps as the letters in a string or the characters in a string, ठीक है, जैसे H E L L O, तो S में start index, last index plus one, और कोलन और एक डाल के यू कैन राइट स्टेप्स। ओके, नाउ स्टेप क्या होता है, जैसे स्टेप वेरिएबल अगर मैंने वन डाला तो इट विल गो वन स्टेप एट अ टाइम, मतलब वो आपको फर्स्ट देगा, फिर सेकंड देगा, फिर थर्ड, फोर्थ, इट विल कंसिडर ईच एंड एवरी अल्फाबेट, बट as in
अ staircase, अगर मैंने 1 की जगह 2 डाला, तो this will, what will it cause is it will go 2 steps at a time, which means it will skip these variables entirely जो second index पे आते हैं, या it will skip for I'm sorry, it will skip the first one and second वाला आपको direct second वाला देगा वो. It will give you the second one, it will skip the third one, it will give you the fourth one, जैसे even numbers में होता है 0 2 4 6 8 वैसे. ठीक है, फिर ये वाला भी skip करेगा वो, because even numbers 2 4 6 8 whatever. So that's the case of steps. वैसे मैंने अगर 3 डाला, तो when I put 3, it will skip 1 2 and give you the directly the third one. So which is basically आपको odd numbers देगा, but it will skip the first one. ये skip करेगा वो 0 1 skip करेगा, फिर वो आपको next वाला देगा उसके बाद. इंडाइसेस अलग होंगे थोड़े, जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो अगर राजस, हाँ बोल. जैसे स्टेप में ये स्टार्ट है, फिर स्टार्ट के बाद सेमीकोलन जो L + सेमीकोलन 1 नहीं, है, कोलन. कोलन L + 1 है, हाँ फिर वापस कोलन, फिर स्टेप जिसको स्पेसिफाई कर रहे हैं. हाँ. तो इसमें जैसे हम लोग ने LLO प्रिंट कराया था, तो LLO में 3 की गैप में देगा या फिर HELLO में पूरा 3 की गैप में देगा ये? अभी बेसिकली वही है कि इफ यू मतलब वो HELLO में से ये जो स्टेप्स, तो जो तूने अगर 2 डाला तो वो फर्स्ट ये ELLO लेगा और उसमें से फिर वो स्लाइस करेगा. So basically if I put steps equals to 2 इस string के केस में, it will pick E, okay, it will pick this, okay, it will pick E and L, okay, फिर उसके बाद आपको ये मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, जो आप स्टार्ट और एंड डालोगे फिर उसके ऊपर वो अप्लाई करेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ वी ट्राई दिस ऑन हेलो वर्ल्ड, आपको अगर 1 से लेके 3 तक चाहिए, ठीक है, एंड आई पुट steps equals to 2, so you will get just E. So what it's doing is it will take the string, it will kind of, even if I put 1 to 5, okay, and if I press enter, so what will happen is वो दो में काटेगा string को, okay, so 1 2 3 4 5, okay, I have 5 elements over here, okay, so if I go, मैंने अगर एक एक skip करके अगर दिया, तो for example मैंने E पकड़ा, फिर L पकड़ा, तो 0 1 2 3 4 5, ये 5 तो गया, ओके, सो 0 गया, ये L गया, ये O गया, ठीक है. बट जैसे मैंने बोला था, द लास्ट इंडेक्स +1 मतलब 5 को वो इंक्लूड नहीं करेगा, सिर्फ 4 तक देगा, 0 1 2 3 4. सो व्हाट विल हैपन इज 0 1 2 3 4 पहले स्ट्रिंग वो उठाएगा, फिर उसके बाद स्टेप्स में उसको गिनेगा, E L ऐसे, ओके. तो जैसे हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है, मैंने 1 to 5 डाल दिया, तो वो हेलो उठाएगा, फिर स्टेप्स में 0 2 4 ऐसे करके वो रिटर्न करेगा. समझा? ओके ओके, गॉट इट. हाँ, तो अगर इसमें मैंने 8 तक बनाया और स्टेप्स डाल दिए 3, ठीक है, और इसको कर दिया, तो सी दैट ये 8 तक डाल दिया तो भी वो लाइक 7 तक उठाएगा, यहाँ तक उठाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. ये स्ट्रिंग उठा लिया, फिर 3 के स्टेप्स है, तो 1 2 3 ये, या फिर 1 है तो इट मींस ये h को भी नहीं कंसिडर कर रहा है, 0 भी कंसिडर नहीं कर रहा है. सो इट्स फ्रॉम हियर टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. सो यहाँ से 1 2 3 स्किप करके वो E उठा रहा है, फर्स्ट उठाएगा पहले ऑब्वियसली, फिर वो जैसे ऑड नंबर्स में होता है यार 1 3 5 7 वैसे, सो इट विल पिक अप E फर्स्ट एलिमेंट वो उठाएगा ही उठाएगा, लाइक अंडर एनी केस इट विल पिक अप द फर्स्ट एलिमेंट,
then it will skip 2 because it will pick up the next third element. तो E उठाया, फिर 2 skip करके O उठाया, फिर 2 skip करके फिर से O उठाया. It works like that. जैसे 2 में इवन नंबर्स पे जो इंडेक्सेस थे वो उठा रहा था, 3 पे ऑड नंबर पे जो इंडेक्सेस है वो उठा रहा है. ओके, so if I skip like copy this one more time, put a space, ठीक है, थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, और इसको मैंने अगर 10 डाला, इसको 10 डाला, नहीं यार इसको 10 डालता हूँ, इसको 15 डालता हूँ या 20 डालता हूँ, उतने कैरेक्टर्स तो होंगे. and if I put 5, okay, so it will do the same thing. अभी 10 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है? 10 का. बट व्हाट विल इट डू इज एक एक करके, अभी 5 का ही डिफरेंस है, तो वो 5 स्किप करेगा एंड देन इट विल कैच वन एलिमेंट एंड देन इट विल स्किप 5 अगेन. ठीक है, अब 2 बट नॉट इंक्लूडिंग 20 है. अगर मैंने 1 से लेके 20 डाल दिया, सो इट विल टेक E एंड W बिकॉज वो 5 स्किप कर रहा है ना. इफ देयर आर 20 डिजिट्स, ठीक है, ये 0 है, ये 20 है, वो स्टार्ट करेगा 0 से, वो 5 स्किप करेगा आगे, इट विल पिक दिस वन आउट एंड इट विल पिक द 5th वन, फिर 5 स्किप करेगा आगे, इट विल पिक द 10th वन, देन इट विल गो टू 20 up to but not including 20. so if I have 19 as the last, अगर मैं 21 डालता तो वो 20th वाला भी पिक करता. okay, that's why I have 2 characters. I would have had 3. जैसे यहाँ पे अगर मैंने 21 डाला होता तो वो नहीं उठाता because it would have gone to like the next 5th element. कुछ confusion है तो पूछ सकता है. नहीं ये क्लियर हो गया मुझे. हाँ, क्लियर. थोड़ा सा वियर्ड है समझने में, लेकिन वो जैसे जैसे तू थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएगा वो तेरी समझ में आ जाएगा. 0 1 2 जो भी है. सो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग समझ में आ गया है तुझे, तो आई होप वी कैन मूव फॉरवर्ड. सो ये सब आप देखो, यू कैन सी दिस कि ये सब वही है, बॉक्स ब्रैकेट में इंडेक्स डाल के यू कैन रिट्रीव द नंबर. And if you want to like index the, which is redundant really, but if you want to like get the whole string as it is using indexing, तो आपको सिर्फ ये कोलन डालना है बस, और कुछ नहीं. and if you want to access the string but from behind, reverse में आपको, अगर उस दिन मैंने जो एग्जांपल दिया था, which is if you have a string which is so long that you don't know the indexes कि कहाँ खत्म हो रहा है string, so what you can do is you can access negative numbers. जैसे -1 अगर आप डालोगे, so you will get the last index. जो hello world में D last आता है तो you will get -1. अभी इसमें if you want to print the string in reverse, तो start end वाला कोलन डाल के फिर you can put -1 in the steps number, so वो उल्टा जाएगा पूरे इसमें. so you will get, ये जो स्ट्रिंग मैंने बनाई थी वो आपको उल्टी मिल जाएगी वापस, बिकॉज ये जो स्टेप्स है दीज आर इन रिवर्स. सो ये आगे नहीं जाता है, ये पीछे आता है. जैसे हम स्टेप्स चढ़ते हैं, ये स्टेप्स उतरता है, तो आपको जो वर्ड मिलता है वो उल्टा मिलता है ऐसे रिवर्स में. ये नेगेटिव इंडेक्सिंग का मैं देखता हूँ आगे. so you can see this over here, negative indexing बताया हुआ है, which is if you put the first index, if you don't put the first index and if you put the last index is -1, so आपको एक अल्फाबेट कम मिलता है, because up to and not including जो होता है वही. so 0 से लेके up to but not including the minus first index which is D, so you will not get D back, you will get rest of the things back. so it's very obvious, at the same time it's not that obvious, so you have to kind of wrap your head around it thoda sa. so string properties I had just मैंने बताया था, उसमें एक important property है which is strings are like tuples, they are not mutable. mutability मतलब manipulate आप string को नहीं कर सकते, you cannot change the value of a string, you have to just
create it and then forget about it. Here you can see if you try to change the first letter of the string और उसको x बनाना, you will get a error which says str object does not support item assignment, which is the same error we got. हम लोग जो tuple में error मिला था ये वही है. So s equals to hello world, फिर आप concatenate तो मैंने आपको बताया था कि you can smush two strings together just by putting a plus sign. फिर ये reassignment, इसमें वो reassignment operators नहीं चलेंगे, plus equals to minus equal to, इसमें आपको यही करना पड़ेगा, s equals to s plus जो भी आपको string जोड़नी है उसके अंदर. Okay, so एक I know you can I don't know, you can consider this as a fun kind of quirk that Python has, which is mathematical operations आप strings के ऊपर कर सकते हो. For example, ये hello equals to hello अगर डाल दिया और hello into 100 आपने अगर type कर दिया तो hello literally 100 times multiply होके एक string में आपको return मिलता है. So this is some weird, not weird, I would say, different kind of quirk that Python gives you. ये आपको Java वगैरह में नहीं मिलेगा. Then string के साथ कुछ functions आते हैं which you can study them separately, which is s dot upper, मतलब आप s जो string है वो आपको full uppercase में convert करके मिलेगी ऐसे. Okay, and s dot lower will convert the entire string to lowercase. Full string जो है एक सेकेंड इसको मैं बना देता हूँ hello, ठीक है. तो I'll execute this. Sorry, see that quotes डालने हैं string के लिए कभी भी. So if that's the entire string is in uppercase, if I want to make it the entire string in lowercase, तो s dot lower अगर मैंने execute किया पूरा string lowercase में बन जाता है. So s dot split is basically एक string है कोई भी, तो उसको अगर आपको split करना है on basis of some delimiter या separator बोल सकते हो. Separator मतलब अब मैंने एक string उठा ली उसको hello space world बोल दिया, ठीक है. मुझे इसको this is a sentence, I want to separate the words out of the sentence, so I will use the split function. Okay, s को hello world बना दिया, s dot split if I do, so hello अलग हो जाता है, world अलग हो जाता है और उस words का मुझे एक list मिलता है. So this function will give me a list back. It will take a string of words in a sentence and it will return me a list of those words that were previously a sentence or a string. So by default, अगर आप इस round brackets में कुछ नहीं डालते हो, so it considers white space as a separator. But if you put anything else, जैसे मैंने अभी 3-4 बार hello world डाल दिया यहाँ पे string के अंदर इसको, and I put let's say some weird symbol जैसे semicolon. Hello world, हर hello world के बाद मैंने space नहीं रखा. I'll remove all the spaces. सारे spaces मैं निकाल देता हूँ so that you understand the principle behind this. So this is now one string, okay, but between every hello world I put a semicolon. सेमीकोलन डाल दिया मैंने, ठीक है. सो मुझे सेमीकोलन के बेसिस पे इस वर्ड को तोड़ना है, ठीक है. तो मैं स्प्लिट में अगर मैंने स्प्लिट, इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ, फिर स्प्लिट मैंने चलाया, मुझे एक ही स्ट्रिंग मिलेगा वापस बिकॉज आई हैव नॉट पुट अ सेपरेटर इन दीज राउंड ब्रैकेट्स. तो मुझे इसमें सेपरेटर डालना है सेमीकोलन, इसको मैं निकाल देता हूँ. सेमीकोलन डाला एंड इफ आई डू दिस, वो सेमीकोलन को एज एन एंकर यूज करके इस वर्ड्स को तोड़ देता है. तो मतलब बेसिकली द कंपाइलर गोज, कंपाइलर स्प्लिट फंक्शन पढ़ता है, फिर वो s को पढ़ते पढ़ते स्टार्ट करता है 0 से 0 एंड इट लुक्स फॉर द सेपरेटर व्हिच इज बाय डिफॉल्ट व्हाइट स्पेस, बट इन दिस केस इट्स अ सेमीकोलन. सो वो सेपरेटर ढूंढता है 1 2 3 4 5 6
6 फिर सेमीकोलन ढूंढता है, फिर 6 तक जो गिना उसको अलग कर देता है, तोड़ देता है, इसे काट देता है, and then it goes from there to world का 1 2 3 4 5 6 सेमीकोलन, फिर वर्ल्ड को काट देता है, it adds it to the list which is it going to give it to us. तो ये लिस्ट मिल गया हमें which is full of the words जो string हमने एंटर किया था. So that's what string is. So print formatting. Print formatting is basically related to the print function. So the print function is kind of जो मैंने आपको बोला था, you want to show anything in the world, कुछ भी दिखाना है आपको, तो आप print use कर सकते हो. But अगर if you want to have a string and inside that string you want to show the value of some variable, ठीक है, अगर आपने taxes अपने calculate कर दिए and you store that inside a variable called tax. Okay, so you put tax equals to rate into principal into whatever. So you want to show that in the print function. So basically, if I'll give you an example. Tax equals to rate times, I don't know, expenditure. ठीक है, अब टैक्स रेट और एक्सपेंडिचर को हमें डिफाइन करना है. अरे यार, rate equals to 0.53, expenditure equals to ये कुछ arbitrary amount, and then the tax is the formula. But now if I have to print कि my taxes calculated are, now I could do what I could do is I could put this sentence and then I could type tax over here. I don't know if this works because ये बहुत languages में चलता है, कभी नहीं चलता है. So yeah, basically आप इसको ऐसे दिखा सकते हो. You can put your formula tax variable कॉमा से सेपरेट करके टैक्स कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते. इन जावा व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट अ प्लस साइन. वैसे यहाँ पे कॉमा है, बट इन केस यू वांट टू शो 2-3 वैल्यूज, जैसे आपको रेट भी बताना है, एक्सपेंडिचर भी बताना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू हैव 2-3 वैल्यूज दैट यू वांट टू शो. सो उसमें प्रिंट फॉर्मेटिंग आता है. taxes calculated are, I put curly braces, okay, curly braces, comma, my expenditure was, फिर curly braces, ठीक है. These are just like placeholders for जो values आप आगे डालने वाले हो. And my interest rate is curly braces. So these are just placeholders. अब हम क्या करेंगे, इसको आगे जो कोट्स, जहां स्ट्रिंग का कोट्स खत्म होता है उसको डॉट फॉर्मेट फंक्शन, और इसके अंदर we will put the 3 values. जो एक वैल्यू यहाँ पे है, 1 2 3 values we will put separated by commas. So what we want to put is tax comma expenditure, okay, and rate, 3 values. Okay, so this is formatting कि string के अंदर if I want to put values at specific positions, जो variables अगर उसकी value हमें specific position पे डालनी है, so we have to just put print entire string, जहां जहां values insert करनी है वहां curly bracket, and then string खत्म होने के बाद dot format function type करके उसके parameters में we have to put tax, expenditure, rate, 3 whatever variables you're putting. So वो basically ऐसा ही है कि if you don't, अभी आप now you'll ask how does it know कि tax की जगह tax डालना है. तो basically ये जो sequencing मैंने maintain किया है, जैसे tax के बाद जो curly braces है, I'll make sure उसमें tax आएगा because dot format में मैं tax पहले लिखूंगा. फिर expenditure was curly braces है, वो second curly brace है, तो मैं इसके arguments में expenditure second लिखूंगा. Okay, so if I just execute this, so as you can see my taxes calculated are 34,000 whatever, 34 million जो भी है. My expenditure was 6564445 and my interest rate is 0.53. Okay, but in this case
अभी ये जो प्रिंट डॉट फॉर्मेट फंक्शन है, इसमें अगर मुझे इसमें रेट डालना है, इसमें टैक्स डालना है और इसमें एक्सपेंडिचर डालना है, सो व्हाट शुड आई डू? सिंपल थिंग इज, ये जो मैंने सीक्वेंस यहाँ बनाया है, so what I can do is I can use that as I can put numbers 1 0 1 and 2. Okay, so उसके बाद क्या होता है, let's see if this works. So उसने सीक्वेंस मेंटेन करते हुए मैंने 0 1 2 डाला है, सो इट कॉस्ट 0 को उसने टैक्स में डाला, एक्सपेंडिचर विच इज द फर्स्ट इंडेक्स को उसमें एक्सपेंडिचर के कर्ली ब्रेसेस में डाला, और रेट को रेट के कर्ली ब्रेसेस में डाला. बट इफ आई पुट 2 ओवर हियर and 1 over here, okay, and again 2 over here, and if I execute this, so rate का भी taxes में आ जाता है, because 0 1 2 वो count करता है, और मैंने first curly brace में 2 डाला है. Explicitly I have mentioned कि I want the second index of the list of parameters in the format function in the first position, in the first curly brace. मैंने explicitly वो चीज mention की है, तो मुझे tax rate पहले मिलेगा, फिर again in the expenditure also I'll get rate, and in the interest rate के इसमें मुझे मैंने 1 डाला है, so I will get 656444, which is my expenditure, which is the first index. So you can number it like that, or if you just put blank curly braces, वो अपने आप sequence assume करके dot format function से parameters उठा लेगा. Okay, so that is the basics of print formatting. उस पे आगे भी बहुत कुछ है I guess, but basics आपको इतना ही समझना है कि कैसे ये होता है. Alright, so we'll move on to the next lesson. अभी प्रिंट फॉर्मेटिंग हमने किया, अभी लिस्ट्स पे आते हैं हम लोग. प्रिंट फॉर्मेटिंग इज अ वेरी सेपरेट लेसन. दिस इज वेरी, क्या बोलते हैं, थोड़ा प्रिंट फॉर्मेटिंग में वो घुस जाता है. So I'll start with lists because list I think I've covered it, but still थोड़ा lists important data structure है. Any kind of most used data structure I would say, apart from integers and strings and everything. So apart from strings and stuff, it's the most used data structure in Python. तो लिस्ट से हम लोग अभी चालू करते हैं. देखो कुछ कुछ पूछना है क्या? पूछ सकता है. नहीं, बस वही एक डाउट आया था मुझे. अच्छा, ठीक है. तो लास्ट टाइम भी वही खत्म किया था ना, स्ट्रिंग्स पे. लिस्ट से चालू करते हैं. रुक मैं कुछ खाने के लिए ला रहा हूँ. हाँ हाँ चलेगा. अब तक हम लोग ने लिस्ट्स नहीं किया है. सो व्हाट वी स्टडीड टिल नाउ इज स्ट्रिंग्स एंड बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक एंड स्टफ. सो अभी हम लोग लिस्ट से स्टार्ट करते हैं. सो लिस्ट मैंने पहले एक्सप्लेन किया है. इट्स जो कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में इसको कंपोजिट डेटा टाइप बोलते हैं. मतलब सब प्राइमरी डेटा टाइप्स का ग्रुप जो बनता है, कंपोजिट, composition of primary data types in a sequence based data structure. टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो so list is basically that. underlying उसका structure array होता है, but string list और array में बहुत फर्क है. जैसे Java arrays में you cannot put any kind of data types in a sequence or any kind of variables. You can, if you create an integer array, you have to put integers in that array. You cannot put anything else. But in lists it's not like that. lists में आप कुछ भी डाल सकते हो. जैसे यहाँ पे दिखाया है, लिस्ट में आप नंबर्स डाल सकते हो, नंबर्स के साथ स्ट्रिंग्स डाल सकते हो, कैरेक्टर्स डाल सकते हो, बुलियन वैल्यूज डाल सकते हो.
So that is the thing. लिस्ट में भी लेंथ फंक्शन जो len फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं, so to know the number of elements separated by commas कितने हैं, if you want to know you can use the len function. सेम जो स्ट्रिंग के साथ जो है आप उसको कंपेयर करके देख सकते हो कितना सिमिलर भी और कितना डिफरेंट भी है. I think the only difference between strings and arrays is that strings are not mutable. आप उसमें changes नहीं कर सकते, but list में sorry array list में interchangeably use कर रहा हूँ. List में आप changes कर सकते हो. You can make changes unlike strings. So indexing is the same which I had explained in the last lecture, which is basically हर element को एक index दिया जाता है 0 1 2 3 जो 0 से start होता है और जितना लंबा list जाता है वहां तक उसकी numbering जाती है. So इसमें भी जो मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था स्लाइसिंग वाली जो ये है एनालॉजी है स्लाइसिंग एंड डाइसिंग, वो लिस्ट्स में भी यू कैन यूज द सेम वे एज यू यूज इन स्ट्रिंग्स. कोई फर्क नहीं है उसमें. अब यहाँ पे जैसे 0 एलिमेंट नहीं, फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक जितने भी है वी आर रिट्रीविंग ऑल दोज एलिमेंट्स and you're getting 2 3 4 5, you're not getting 1. So strings के केस में my list, if you index or slice it, you will receive a string back which will be smaller than the string before. But in the case of lists you will be returned a list back. आपको list ही मिलेगा वापस. वो list पहले वाले list से छोटा होगा लेकिन वो list ही होगा. So that's the difference between the slicing of strings and the slicing of ये क्या बोलते हैं उसको lists. So इसमें भी वही है, last index not like it's not included. तो अगर आपने 3 डाला है index, so you will get the 0th index, 1st and the 1st and the 2nd. You will not get the 3rd index. So it's called up to but not including the last index. So ये up to but not including थोड़ा बड़ा sound करता है, but you just need to remember that वो क्या है ऐसे. So we can also use the plus to concatenate lists, which is the same as strings. तो दो lists को अगर आपको जोड़ना है और उसको one list एक list बनाना है, so you can use the plus operator, जिसमें आप variable को actual list के साथ जोड़ सकते हो या दो लिस्ट को ही एक के साथ जोड़ सकते हो या फिर दो वेरिएबल्स को जोड़ सकते हो जिनकी वैल्यू एक लिस्ट है. सो ये लिस्ट, दिस डजंट चेंज द लिस्ट, इट जस्ट जॉइंस देम टुगेदर. उसको तो एक दो डब्बों को एक डब्बा बना देता है, बस यही फर्क है. ओके, सो लिस्ट like unlike strings, lists are mutable. तो आप list को कोई भी वैल्यू reassign कर सकते हो, list को आप change कर सकते हो. जैसे यहाँ बताया है my list is equals to my list plus जो भी नया list आप नया list बना रहे हो. तो ये item जैसे यहाँ पे बताया add new item permanently, तो ये जो भी list है ये इस list के अंदर add होके अपने आप में ही ये हो जाएगा, convert हो जाएगा. So my list is equals to my list plus the new list. So that will be the final value of my list. जैसे यहाँ पे बताया है. अभी list भी string की तरह है जिसको आप multiply into some integer अगर आप करते हो. So nothing, you will get a bigger list which will be just repetitions of one list. मतलब ये एक list जो आप one list है, so you will be have it repeated it twice in the same list, in the new list, sorry. In the bigger list which you receive back, you will have the same my list but उसके elements repeat होंगे दो बार. अगर आप 3 डालोगे, if you put 3, my list को initialize नहीं किया है मैंने. Okay, initialize करके if I do this then this, अभी मैंने list my list into 3 अगर कर दिया, so I'll get it repeated thrice. So 1 3 बार आएगा, 2 3 बार आएगा, 4 3 बार आएगा, लेकिन सीक्वेंस में. So my list को भी अगर आपको प्रिंट करना है
So you just have to put it in the print function. You will get the entire string printed start to finish. बेसिक लिस्ट मेथड्स. अभी मेथड्स, फंक्शंस, बिहेवियर, ये इफ यू रीड प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी, ये तीन वर्ड्स, थ्री वर्ड्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. मेथड्स बेसिकली फंक्शन ही होता है, और फंक्शन अगर इफ यू वांट टू यूज इट इन ए क्लास, जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो एनालॉजीज यूज करते हैं उसके टर्म्स में, इफ यू वांट टू यूज द वर्ड मेथड्स, यू कैन आल्सो यूज द वर्ड बिहेवियर, जिसको बोलते हैं features, behavior, functions, methods. All these will be used like features is different, but methods, functions and behavior, ये सब एक साथ मतलब एक दूसरे की जगह पे यूज करते हैं. So list में अगर आपको नए elements डालने हैं, if you want to put new elements inside a list, end से मतलब 0 1 2 3 4 and 10 is the last index. If you want to add a 11th element, you will use the append function. Okay, and उसके parameters में you will pass whatever you want to add. तो आप ये add कर सकते हो, ये as one string you can add. So you will get, if this is 1 2 3, you will get append me string will be added to this list. You can also add another number, जिसको आप 4 भी ऐड कर सकते हो. So if you show that list, फिर append me already add हो चुका है permanently, so you will get 4. So list one dot append is basically this, but argument में आपको ये enter करना है so that it is added to the end of the list permanently. Okay, so you can add a new list also. आप append में 4 5 6 7 8 9 ये पूरा लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, फिर ये entire list will be appended at the end. But append function only appends one item, so इसीलिए ये पूरा का पूरा list end में append हो चुका है. It would have not done like 4 5 6 7 8. उसके लिए आपको append function 3-4 बार करना पड़ेगा जितने भी आपको elements ऐड करने हैं. So pop is a function जो elements निकालता है list में से. So this one basically removes the first element and it returns it to you. वो आपको दिखाता है कि वो क्या element, देखो मैंने क्या element निकाल के लाया है. So pop is that function. So list one में से अगर 0th index पे जो element है वो अगर मैंने निकाला, तो basically it gives you back 1, which means list one में अभी ये 1 नहीं है because ये 0th index पे था और उसको मैंने निकाल दिया है. So now 2 is the new 0 index and 1 has been removed. So 2 is the new 0, 2 is now on the 0th index, 3 is now on the first index, then append me is on the second, fourth, ऐसे third, fourth करके फिर वो reallocate हो जाता है 0 को fill करने के लिए. So you can see list one doesn't have 1 now, it just has 2 3 and append me. So pop method जो है, it returns a value. A function returns a value मतलब function को आप एक input देते हो, it returns you a value. जैसे pop ने 1 return किया, जैसे now you've seen a lot of methods, जैसे length वाला जो method था len, it returns you a number, it gives you back a number which is the number of elements in a list or the number of elements in the characters in a string. So pop method वापस क्या देता है? Pop method gives you the element that it has removed from the list. So you can naturally list dot pop, अगर आप खाली ब्रैकेट देते हो तो वो end से निकालता है. वो list के end में जो है ये item, this item, the last item in the list, it removes that. If you don't put any index, कोई भी इंडेक्स अगर आप नहीं डालते हो, it removes the one from the last index. Last वाला element list का वो निकालता है and it returns you the value. Okay, so if I don't, and so that it returns you, returns मतलब वो उस value को वापस देता है आपको on the console, or you can assign it to a variable. Okay, if you assign it to a variable, फिर वो जो pop जो return करेगा, it will go back to the
variable itself, and it will not be printed in the console. It will go back to the variable. So that's the difference. If you assign it to a variable, the returned value goes into the variable. अभी function जैसा मैंने explain किया था, functions are basically nothing but these are like black boxes. Black box पता है ना क्या होता है? मैथमेटिक्स में बताया होगा. ब्लैक बॉक्स इज बेसिकली इट्स अ फंक्शन जिसका वैल्यू अपने को नहीं मालूम क्या होता है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है. पाइथन में मोस्ट फंक्शंस आर ब्लैक बॉक्सेस. यू डोंट नो व्हाट्स इनसाइड देम बट यू नो व्हाट दे डू. एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसको बोलते हैं. क्या बोल रहा है? नहीं, मैं बोल रहा था एक एविएशन की टर्मिनोलॉजी में भी एक ब्लैक बॉक्स. हाँ, Like aviation used for- that, yeah, so in aviation terms black box means I think it records all the features Yeah, of yeah. the plane and how all the configurations and stuff. But in this case a black box in mathematics and computer science means it's just a function, or it does something, you know what it does but you don't know how it does it. So that's the thing. So इसमें आप input डालते हो x and you get some value which is y. Okay, so the same thing pop जो है, if you consider it as a black box, x will be your जो भी है, you will put an index inside or you don't put an index inside. If you put an index inside over here or dot whatever string you are using, वो string में से first element को निकाल देता है और उसको वापस देता है. It gives that thing back to you. So string में से zeroth in अगर आप निकालोगे string word, just string में से आप s which is the zeroth index, because you put it in the argument, it gives you that back. So अब y की value है s, it gives you s back. So that s you can store it in a variable, any variable called, उसमें y में आप store कर सकते हो by saying string dot pop 0, or you can just enter it into the console. Okay, कुछ भी कर सकते हो आप, दोनों में से एक. So that's what basically a function is. कोई भी function हो, it's just it takes some input and it gives you an output. That's all it does. अभी आगे हम लोग next lesson में सीखेंगे function बनाते कैसे and all that jazz. But फिलहाल इतना ही समझने में, like it's important you understand this. Okay, so अभी item pop करने के बाद you can see कि वापस list 1 अगर हम view करते हैं तो it shows me 2, 3 because we have removed the first element which was 1 and we have removed the last element which is the default function pop. It removes the last element, so remaining 2 and 3 it shows you 2 and 3. Now index जो होता है list का, it will only show you the last index जितने elements list के अंदर है. तो अगर 0 और 1, if you have only 2 elements, you will only be able to access the 0th index and the 1th index, first index. उसके आगे का कोई भी index आपने डाला, जैसे इस भाई ने यहाँ पे 100 डाला है, तो वो आपको error देगा which will be called out of bounds error और index is out of range error. तो index अगर किसी element को refer करता है जो list में है ही नहीं, जैसे 99 elements है और you are trying to access the 100th element, you will not get it. It will give you list index out of range. So what common mistake इसमें क्या होती है कि लोग गिनते हैं कि हाँ इसमें 2 elements है list के अंदर, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 elements है, so I can access the second element by putting index 2. So that won't happen because that index itself doesn't exist because the indexing starts from 0, right? अगर indexing 0 से start होता है, if there are 2 elements then the last index will be 1 not 2. And that is the same when you consider bigger lists. And even if you consider strings में भी same चीज है कि 0 से start होता है, तो the last index will not be equal to, let's say, the size of the list. It will be equal to the size of the list minus 1. उसके पहले वाला second last बोलते हैं ना, वो index. So remember that because a lot of people make mistakes
इन लिस्ट्स, वही मिस्टेक करते हैं. Okay, so method sort. Okay, sort and reverse methods. टू मेथड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मुझे अगर इस लिस्ट को सॉर्ट करना है, मतलब ये जो अल्फाबेट्स है इनको अगर मुझे ऑर्डर में डालना है तो आई विल यूज द सॉर्ट मेथड. ठीक है, आई जस्ट पुट अ न्यू सेल ब्लॉक. सो न्यू अंडरस्कोर लिस्ट डॉट सॉर्ट अगर मैंने किया और न्यू अंडरस्कोर लिस्ट मैंने व्यू किया, so these elements are now sorted a b c d e whatever e x जो भी है. Okay, so that's the sort method, pretty self explanatory, no arguments, nothing, just the list and dot sort. So ये dot होता है कॉल करने के लिए, तो आपको इस लिस्ट पे कोई फंक्शन कॉल करना है, so you use the dot operator. So it's new list dot sort. Okay, सो द सेम गोज फॉर द रिवर्स फंक्शन. अगर इस लिस्ट को आपको रिवर्स करना है, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस लिस्ट को सॉर्ट किया है, सो द सॉर्टेड लिस्ट इज नाउ द न्यू लिस्ट. सो बट आई वांट टू रिवर्स द वैल्यू. अगर मुझे वैल्यूज रिवर्स करनी है लिस्ट की, तो आई हैव टू रन द डॉट रिवर्स फंक्शन list dot revert, and now if I view this list I will get जो sorted list है, because मैंने sort पहले ही रन किया है, तो मुझे उसका उस sorted list का रिवर्स में एक लिस्ट मिलेगी. Okay, it takes list as a the function is called on a list but it returns also a list which is reversed. अगर मैंने sort नहीं रन किया होता तो मुझे डायरेक्ट ये लिस्ट जो है हमने जो पहले बनाई थी उसका रिवर्स मिलता, which would have been something like sort को skip करके अगर मैंने रन किया, we will get this which is the reverse of the list we created over here. Okay, so nesting lists, I think I have discussed this with dictionaries. So basically क्या है कि हमने 3 लिस्ट बनाई है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा बट डोंट वरी अबाउट इट. 3 लिस्ट हमने बनाई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, एंड वी हैव पुट दोस 3 लिस्ट्स इनसाइड अ न्यू लिस्ट. सो विच इज बेसिकली कि लिस्ट के अंदर लिस्ट जो बोलते हैं वही. तो अगर बड़े वाले मैट्रिक्स जो बड़ा वाला लिस्ट है, अभी इसको मैट्रिक्स बोला है क्योंकि मैथ्स में मैट्रिक्स वही होता है. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ मैथ अगर हम एक मैट्रिक्स पकड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, you can consider this in math as one big matrix, but अगर कंप्यूटर साइंस का आपको थोड़ा सा इंट्यूशन आ गया है, so you can consider this as a list of 3 separate lists. Okay, if you want to consider this as that, you can consider this as a list of 3 lists basically. So the thing with lists is, जैसे डिक्शनरी का मैंने आपको बोला था, डिक्शनरी के अंदर you can put a list, फिर उसके अंदर you can put a list, कितने भी लिस्ट आप डाल सकते हो. वैसे ही लिस्ट का भी वही है, लिस्ट के अंदर you can put a 1 list, 2 list and so on. Okay, so जितने भी लिस्ट्स आप एक के अंदर एक बनाते हो, तो इंडेक्स करते टाइम पे that's the number of square brackets you will use to index the inner lists. ठीक है, तो अभी मैट्रिक्स ऑपरेशंस में ये यूज होता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू मेक दीज एंड ऑपरेट ऑन दीज. ओके, सो बेसिक्स जो मैंने डिक्शनरी के साथ बताया था, वैसे इंडेक्सिंग यू हैव टू रिवाइज एंड स्पीक, लाइक रिवाइज एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज ये जो है अब मैट्रिक्स इज बेसिकली अ 2 dimensional डेटा स्ट्रक्चर, 2 dimensional क्या बोल सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर. उसके बाद फिर इफ यू लर्न मशीन लर्निंग जिसमें टेंसर्स वगैरह होता है, या फिर इफ यू वांट टू ऑपरेट अ 3 dimensional डेटा स्ट्रक्चर, फिर ये लिस्ट के अंदर की जो लिस्ट है उसके अंदर भी एक लिस्ट आएगा. ठीक है, तो ये ऐसे मतलब डिमेंशनैलिटी बढ़ा देता है लिस्ट.
list use करके you can increase the dimensionality of your data structure. You can make it 4 dimensional, 5 dimensional, जो भी है. So you can use lists to represent matrices और या फिर थ्री डिमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स. जैसे फॉर एग्जांपल एक इमेज है, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट. यू कैन पुट दीज लिस्ट्स ओवर हियर, ये पिक्सल वैल्यूज बताने के लिए. जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हुआ तो 0 1 0 1 जो भी है, ओके, 1 0 1 0. This will make some kind of image on the screen. Okay, ये 4 dots will give you 4 dots, 4 pixels which are black in color. So ऐसे ही images बनते रहते हैं. या फिर 0 black हुआ तो 0 जो भी है, 0 is black and 1 is white. So pixel values के हिसाब से it makes shapes and जो भी है. अगर color हुआ, अभी ये x y है 2 dimensional क्योंकि 0 1. color हुआ तो हर list के अंदर, भाई साहब, हर लिस्ट के अंदर जो इनर लिस्ट है, जो अंदर वाली लिस्ट है, सो दिस इज 1 डिमेंशन, दिस इज 2 डिमेंशन. जैसे आपका ये अंडरस्टैंड, जस्ट थिंक अबाउट दिस एज अ टीवी. ओके, सो 0 1 0 1 0 1 ब्लैक एंड व्हाइट हुआ. ओके, इट गिव्स यू अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज. बट इफ यू कंसिडर दिस अ कलर टीवी, फिर इसके अंदर एक लिस्ट होगी which will give you RGB values. ठीक है, तो this is 1 pixel which will have a list of RGB values which will, जो एक list है, which will combine and give you the color of that pixel. तो ये हो गया 3 dimensional because it's X, Y and your color channel. अब हाँ, Z बोल सकता है. तो ये मल्टी डिमेंशनल जो एक पैराडाइम है, यू कैन express this in terms of lists. Basically what I want to say, okay, now that I've given you an analogy, you will understand these better. So अगर इस लिस्ट को मुझे ये G वाला RGB में से G अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये कलर टीवी का इंडेक्स जो है, ये कलर अंडरस्कोर टीवी की वैल्यू ये है, ये इंडेक्स, ये मैट्रिक्स है 3 dimensional. So if I want the G value of the first pixel, so what I have to do is index starts from 0. Okay, so इस list का 0th value will be the first list, so it will be this 0. Okay, 0th value this list. Okay, फिर उसमें जो first element है, उसके अंदर जो first element है, so this list जो है, ये list मतलब 1 2 3 जितने भी यू मेक लिस्ट्स. ओके, सो इसके अंदर एक पिक्सल है. ओके, दिस इज द थर्ड डिमेंशन, व्हाटएवर यू कॉल इट. इसके अंदर RGB है. इसको मुझे अगर एक्सेस करना है, इस पिक्सल को मुझे अगर एक्सेस करना है, आई हैव टू पुट 1 मोर, ये, और उसका G अगर मुझे चाहिए, सो आई हैव टू RGB में से R is 0, R is 0, G will be 1. So I have to use the first index. ऐसे इसको मल्टी डिमेंशनलिटी अगर मुझे क्रिएट करनी है यूजिंग लिस्ट्स एंड आई हैव टू एक्सेस दिस इनर लिस्ट का वैल्यू, तो मुझे ये ऐसे 2 बॉक्स ब्रैकेट यूज करके करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ना इतना? लाइक एक डाउट है इसमें, हाँ, बोल. जैसे जो ये एग्जांपल यूज किया है तो उसमें जो मैट्रिक्स बना था तो one was X and the other was Y. हाँ, So both they were part of one matrix alone. हाँ, तो X और Y में हम लोग को RGB ढूंढना है हाँ, नेस्टेड हाँ, लिस्ट में. हाँ, हाँ. तो बट उसको डिनोट कैसे करेंगे? लाइक ब्रैकेट के अंदर ही ब्रैकेट होगा ना वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, तो the thing is, this is a list. Okay, the first list, okay, I may be making a mistake over here. तो इसको टीवी अगर हमने बताया, so this is your first
लेट्स से डिमेंशन, ओके। इस एक लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट है, ठीक है। देयर आर 3 लिस्ट्स। जो अभी ये रो है, इस रो के अंदर एक कॉलम होगा which will be a pixel, और इसके अंदर RGB होगा। So yeah, like I said before, it's not before मतलब उसके पहले जो मैंने बोला था, which is RGB is 3 values inside the second nested list. These are called nested list. Nested मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट जब होता है तो उसको nested list बोलते हैं। तो ये nested first list है, this is the second nested list. Okay, so TV1 bracket accesses this list. Okay, अब डिमेंशन, कोर डिमेंशनैलिटी की बात करते हैं। जो डिमेंशंस में बोल रहा था, टीवी का जो डिमेंशन होता है, तो एक्स वाई, तो ये एक्स डायरेक्शन में मतलब 1 2 3, ये फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट जो है वो इसको एक्सेस करता है, इस लिस्ट को। नाउ दिस एक्सेसेस दिस लिस्ट, ओके। तो इस लिस्ट के अंदर 0 1 2 3 विल बी एक्सेस्ड बाय द सेकेंड ब्रैकेट, ओके। ठीक है। और उसके अंदर जो लिस्ट है, ये इसके अंदर ये है RGB है, ठीक है, उसको एक्सेस करेगा तीसरा वाला बॉक्स ब्रैकेट। सो फर्स्ट एक्स का 0, ठीक है, मतलब ये लिस्ट, फिर उसका फर्स्ट वाला मतलब ये 0, ठीक है, और इसका आई वांट G विच इज सेकेंड, सो 1। ओके, सो मैंने मिस्टेक कर दिया, 2 ही बनाया था, एक्चुअली 3 बनाना चाहिए था बिकॉज इट्स 3 डिमेंशनल। तो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट अबाउट द डिमेंशनैलिटी पार्ट। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन एनालॉजी आए इसके लिए मैंने ऐसे समझाया, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लिस्ट, उसको इंडेक्स करने के लिए पहला ब्रैकेट, उसके अंदर जो लिस्ट है उसको इंडेक्स करने के लिए दूसरा, और उसके अंदर जो फर्स्ट लिस्ट है उसको इंडेक्स करने के लिए तीसरा। ओके, सो दिस इज द बेसिक एनालॉजी ऑफ नेस्टेड लिस्ट्स। नेस्टेड माने एक के अंदर एक के अंदर एक, जैसे नेस्ट होता है वैसे। सो दिस वाज अ बिट एलैबोरेट, ये जो एग्जांपल था, लेकिन अब इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड नेस्टेड लिस्ट, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा बिकॉज वो थोड़ा सा समझ के बाहर चला जाता है। सो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट है, और बिना फॉर लूप सीखे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन समझ में आएगा नहीं। लूप सीखे कॉम्प्रिहेंशन आएगा नहीं समझ में। तो बेसिकली आई विल टीच यू फॉर लूप्स फर्स्ट फटाफट, तो उसके बाद हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को एड्रेस करेंगे, ठीक है। सो लूप इसमें बताया है नहीं, तो मैं एक नया फाइल बना देता हूँ। अच्छा, तो loops is basically loops are basically iterative constructs. अब iterative constructs तू बता सकता है क्या है? नो, नॉट रियली। तो iteration का मतलब क्या होता है? Iteration basically means repetition. Okay, reps जो होता है, जैसे I'll give you gym का analogy. Okay, so if you are going to the gym, okay, and you are not a human being, you are a robot. Assume करते कि तू एक रोबोट है। अगर तुझे अगर तू एक रोबोट है समझ ले, ठीक है, और तू जिम जा रहा है, एंड आई हैव टू प्रोग्राम यू, मी एज द कोडर, आई हैव टू प्रोग्राम यू टू काइंड ऑफ गो टू द जिम, यू नो। जैसे अब तक हम कोड लिखते आ रहे हैं सिक्वेंशियली, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आई हैव टू टेल यू इज गो टू जिम, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट कमांड। माय सेकंड कमांड विल बी वेयर शूज, ठीक है, एंड माय थर्ड कमांड विल बी कीप बैग एंड लॉकर, जो भी है,
ठीक है, तो ये करते जाएगा। अभी now when you start, now my command will be pick dumbbell, ठीक है, बेसिक कमांड है। अभी ये जो हमने कोडिंग की थी ना, इसको सिक्वेंशियली बोलते हैं, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर। सो whenever the compiler will look at my code, it will look at it sequentially, ठीक है। अभी इस सीक्वेंस में ब्रेक तब तक नहीं आएगा जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, ठीक है। अभी तूने आई पुट पिक डंबल, ठीक है। अब मुझे अगर बताना है कि इस डंबल को उठा या फिर इसको कर्ल कर या डू 1 रेपिटेशन ऑफ योर वॉट एवर एक्सरसाइज, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कर्ल डंबल, बराबर। लेकिन अगर ये तो एक रेपिटेशन हो गया ना, मुझे अगर ऐसे 10 मानने, 20 मानने, 50 मानने, तो मैं क्या करूंगा, इसको मुझे 10-20 बार लिखना पड़ेगा, कर्ल कर्ल डंबल, कर्ल डंबल करके मुझे इसको लाइक बार 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 लिखना पड़ेगा। एंड दैट इज काइंड ऑफ अ वेस्ट ऑफ टाइम इन अ वे, बिकॉज जितनी बार मैं ये लिखूंगा उतनी मेमोरी वो खाएगा, ये जो लिखा हुआ चीज है उतनी बार मुझे लिखना पड़ेगा। एंड आई इट विल बिकम वेरी सम फॉर मी, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल तू रोबोट है, ठीक है, तुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है अगर तू रोबोट है, तो फिर भी तू अगर एक्सरसाइज करना चाहता है और तुझे पता नहीं 100 मारने की आदत है, 100 रेपिटेशन मारने की आदत है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन में लिख रहा हूँ मुझे 100 बार लिखना पड़ेगा। So in that I might lose count, I might put in a few extra reps जिसमें फिर you will pull your muscles, you get injured or something like that. So to shorten this process, you use something called loops. तो बेसिकली लूप क्या होता है, लूप वही होता है जो लूप का जो मीनिंग होता है, ठीक है। हुला हुप सुना है तूने, हुला हुप क्या होता है, एक गोल ऐसा लूप होता है ना। तो लूप इज बेसिकली दैट कि मैंने एक कमांड लिखा, ठीक है, जैसे मैंने अभी लिखा था कर्ल डंबल, मुझे अगर ये कमांड 100 बार रन करना है तो मैं इसको अगर लूप में डालता हूँ, या ऐसे नहीं ऐसे, हाँ क्लॉकवाइज जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। डंबल को मैंने अगर लूप में डाला यहाँ पे, एंड आई मेक 100 iterations. Iterations is basically the number of times that thing is being called, the number of times the instruction is being executed, that is called iterations. There can be 1 iteration, 2 iterations, 3 iterations, जो भी है, ठीक है। तो if I call 100 iterations on this command using a loop, then I don't have to type that command 100 times, समझ रहा है। तो एक बेसिक लूप का मैं तुझे एग्जांपल बताता हूँ। आई हैव, जो भी मैं कोड लिखता हूँ वो ऐसे सीक्वेंस में होता है, ठीक है, प्रिंट देन a इक्वल्स टू 5, ठीक है, फिर एक लिस्ट बना दिया यहाँ पे जिसका वैल्यू है 1 2 3 4। तो जो भी चीज अब सिक्वेंशियल में हो रही है उसको अगर जैसे मुझे 5 ये नंबर प्रिंट करना है 5 बार, तो मैं 5 बार तो ए प्रिंट ए नहीं लिख सकता, that will waste my time. So what I will do is I will create a loop over here. I will put 5 iterations and I will say print a. तो वो a को 5 बार प्रिंट करेगा। जब मैं प्रिंट a स्टेटमेंट लूप के अंदर डालता हूँ वो प्रिंट को 5 बार एग्जीक्यूट करेगा, समझ रहा है। बट सैडली इतना सिंपल सिंटैक्स नहीं है लूप का। तो there are different kinds of loops. There is something called a for loop, there is something called a while loop, ठीक है, there is something I think do while loop python में है, पता नहीं, I will get to it later। लेकिन एक for loop होता है और एक while loop होता है, तो उसको अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, loops in python।
ओके, सो बेसिकली जैसे तू यहाँ देख रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे जो तू देख रहा है कि एक लिस्ट है, ठीक है, and I'm trying to print all the elements in the list. Okay, so I cannot type fruits index 0, print fruit index 0, print fruit index 1, print fruit index 2. So what I'm doing is, this is the syntax for a loop. ठीक है, तो basically what I am doing is, अभी for loop अगर मैंने पकड़ा, for loop क्या करता है, for is a reserved word, it's a command. Okay, for I is a placeholder, it's an identifier. ठीक है, इस चीज की अब तक कोई वैल्यू नहीं है. For I in is also a reserved word, for is also a reserved word. Okay, तो इसको as it is ही लिखना है. For I in जो भी list है, list colon, loop खत्म होने के बाद you always use a colon. Okay, colon के बाद नेक्स्ट लाइन पे एक इंडेंटेशन के साथ यू हैव टू प्रिंट योर आई. अभी इसका मतलब मैं तेरे को बताता हूँ. अभी इंग्लिश लैंग्वेज में तू अगर पढ़ने जाएगा फॉर आई इन लिस्ट, ठीक है, तो इसको बिटवीन द वर्ड्स फॉर एवरी आई इन द लिस्ट, मतलब लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट के लिए ये तुझे एग्जीक्यूट करना है, विच इज प्रिंट आई. तो अगर मैंने इस लिस्ट की जगह एक एक्चुअल लिस्ट डाला, 1 2 3 4, ओके, आई वांट टू प्रिंट ईच एंड एवरी एलिमेंट इनसाइड दिस लिस्ट. ओके, तो फॉर आई विच इज अ प्लेस होल्डर इन दिस लिस्ट, तो फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू होगी 1. ठीक है, इट विल द कंट्रोल विल गो इनसाइड द लूप, फर्स्ट इटरेशन पे वो प्रिंट आई करेगा. करंटली आई की वैल्यू जो पहले कुछ नहीं थी, वो फर्स्ट इटरेशन में द वैल्यू इट टेक्स अप इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, जो हम इन के बाद लिखते हैं. ठीक है, इट टेक्स अप द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एंड इट प्रिंट्स इट, तो तेरे को पहले 1 मिलेगा. ठीक है, देन इट गोज बैक, आई की वैल्यू फिलहाल 1 है विच इज द फर्स्ट एलिमेंट, then it goes to the second element. Okay, now I is equal to 2, and when it comes into the loop, print I की वैल्यू 2 है तो वो 2 प्रिंट करेगा. समझ रहा है? फिर वो वापस जाता है, I की वैल्यू फिलहाल 2 है, इन 1 2 3, अब वो 3 के पास जाता है, I की वैल्यू अब 3 है, प्रिंट I 3. समझा इतना? हाँ. अब ऐसे लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स है, ओके, so in English language terms, for each, every भी नहीं, each I in this list, which can be of any number of elements, okay, so 0 1 2 3, सारी लिस्ट वो sequentially iterations में प्रिंट करेगा repeatedly. It will access the list, I को first value देगा as a current value, come inside the loop, print it, and then go back. As soon as the list जब खत्म होती है, I की final value वो print करता है, then it will exit the loop. Okay. So the first iteration में it will enter the loop, and last iteration के बाद it will exit the loop. लूप के अंदर जितने भी कमांड्स है, एक ही नहीं, तू 10 कमांड डाल सकता है लूप में, वो 10 के 10 कमांड वो उतनी बार एग्जीक्यूट करेगा. समझा? अब तेरे को मैं कोड में एग्जांपल बताता हूँ. कहाँ गया मेरा?
I give you a list, okay, which is equals to 0 1 2 3, अरे डॉट हो गया, 1 1, अरे यार, 1 2 3 4 5 6, okay, there are 6 7 elements. Abhi Okay. for I is just a placeholder, it's a temporary variable. ठीक है, temporary variable for I in list underscore 1 colon, because colon is you define the entry point of the loop. तो Okay. एंटर दबाने के बाद अब ये लूप की बॉडी है विच इज डिफाइंड बाय एन इंडेंटेशन. अगर फॉर लूप के बाद एक इंडेंटेशन है एंटर दबा के, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लूप की बॉडी चालू होती है. ओके, ये लूप का ही पार्ट है, लूप के बाद वाला इंडेंटेशन लूप का ही पार्ट है. Okay, anything I type with one indentation after the for loop is belongs to the loop. So if I put print I one time, if I put print I two times, okay, वो पूरा list one at a time, I will take the value of each element one at a time from the 0th index to the last index and it will print it 1 0 1 2. अभी मैंने print 2 बार लिखा है, इसके लिए ये दोनों कमांड्स हर लिस्ट के वैल्यू पे 2 बार एग्जीक्यूट करेगा ऐसे. ओके 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 ओके, गॉट इट. हाँ, रिपीटेडली करेगा एक के बाद एक, इसके लिए इसको लूप बोलते हैं. तो ये लूप का एंट्री पॉइंट है जिधर आई टेक्स अप द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, देन द सेकंड एलिमेंट, देन द थर्ड एलिमेंट, देन द फोर्थ एलिमेंट, ऐसे करके वो 2 बार. अगर मैंने एक बार लिखा तो एक ही बार प्रिंट करेगा. ओके, 2 बार लिखना ज्यादा सही है, मतलब एक्सप्लेनेशन के हिसाब से. हाँ, तो वही मेरा पॉइंट था. 2 बार नहीं समझा. तो लूप की जो बॉडी है, ये लूप का स्टेटमेंट है और ये लूप की बॉडी है. लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं, द लूप विल एग्जीक्यूट देम n नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, समझा? इट विल एग्जीक्यूट देम n नंबर ऑफ टाइम्स. n मतलब क्या है? इन दिस केस n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो इट विल प्रिंट एवरी सिंगल एलिमेंट 0 1 2 3 4 ऐसे. तो ये जो बॉडी और स्टेटमेंट वाला किस्सा है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, बिकॉज ये थोड़ा एक्सटेंसिव है. फिर इसमें वो इफ एल्स एलिफ वगैरह भी आता है. ठीक है, these loops और फिर if else जो हम लोग पढ़ते हैं, these are called control structures, जो कंट्रोल को मैनिपुलेट करता है. जो मैंने तेरे को बोला था ना कि ये कंट्रोल कर्सर या कंट्रोल, जो कंपाइलर के पास भी एक कर्सर या कंट्रोल होता है, ये उस कंट्रोल को मैनिपुलेट करता है. वैसे हम स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट जब लिखते हैं, वो कंट्रोल उसको सीक्वेंशियली पढ़ता है, लेकिन कंट्रोल को अगर हमने मैनिपुलेट किया टू यूज लूप्स, तो लूप्स कंट्रोल को इटरेटिव घुमाते रहता है, बार बार एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता है. और कंडीशनल कंट्रोल होता है तेरा इफ एल्स, जो कंडीशन के बेसिस पे स्टेटमेंट्स को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. ठीक है, ओके ओके ओके. हाँ, इसको ट्राई करते रहे. और ये W3 स्कूल्स की वेबसाइट जो है, इस पे भी एक मतलब बहुत कुछ सही कोड दिया हुआ है. तो इस पे तू पाइथन का पूरा पढ़ के, लूप्स वगैरह पढ़ के एकदम मस्त प्रैक्टिस कर सकता है. ठीक है, कहाँ गया? हाँ, चल फिर ये लेक्चर यही खत्म करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ब्लॉक्स वगैरह पढ़ते हैं. ठीक है, हाँ, लाइक फॉर लूप के आगे ही ना सारा. हाँ, और जो मैंने एक्सप्लेन किया, बॉडी, स्टेटमेंट, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर, वो सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और लूप्स, इफ एल्स वगैरह भी बता दूंगा. ठीक है, चल तो ओके. यस.